पंजाब जीके ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, that is which of the following are shown in the official seal of Punjab। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਡੀ ਤੇ ਖੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਡੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੰਡਾ, ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਖੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਟ, ਵੀਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਵੀਟ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਚੱਕਰ, ਵੀਟ ਤੇ ਪੈਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਲ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੀਟ ਐਂਡ 2 क्रॉस ਸਵੋਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਟ ਦੀ ਬੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਹੇਅਰ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ। ਔਰ 2 क्रॉस ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰਨਾਥ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਇਨ ਆਪਣਾ ਪਿਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ SGPC ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ SGPC। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕੌਣ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਮਸ ਪੇਂਟਰ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਫੇਮਸ ਪੇਂਟਰ। ਇਹ ਪੇਂਟਰ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਂਟਰ ਸੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬਣ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇਹ ਆਸਟਰੀਅਨ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਸੋ ਔਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਘੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੀ ਬਿਕੇਮ ਦ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ, ਹੂ ਆਰ ਦ CMs ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਪੈਪਸੂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮਰਜਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1947 'ਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਪਸੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀ, ਇਹ 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਪੈਪਸੂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹ 1948 ਨੂੰ, 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹ। ਔਰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ।
कि दैट मीनस कि ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर सीगे ते ये पेप्सू दे, ठीक है जी। सो ये ऑप्शन गलत है। गोपी चंद भार्गव वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, बट नॉट एट द टाइम 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। सो और दूजी ऑप्शन किहड़ी है प्रताप सिंह कैरों एंड भीम सेन सच्चर। तीजी ऑप्शन किहड़ी है गोपी चंद भार्गव एंड बृषभान। और चौथी ऑप्शन किहड़ी है प्रताप सिंह कैरों एंड बृषभान। सो इहदा जिहड़ा जवाब है साडे कोल दैट इज प्रताप सिंह कैरों एंड बृषभान। भीम सेन सच्चर भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे ने। एक गोपी चंद भार्गव ते भीम सेन सच्चर ये आपस दे विच दोनों कांग्रेस के लीडर सीगे, पर दोनों के आपस लड़ाई चलती रहिंदी सीगी। और पहला यह बने फिर ये बने फिर दोबारा यह बने, इस तरीके नाल इन्हां दी लड़ाई आपस चलती रहिंदी सीगी। बृषभान जिहड़े सीगे ये पेप्सू के चीफ मिनिस्टर रहे ने। सो प्रताप सिंह कैरों ये फरवरी 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन गए ਸੀਗੇ, ठीक है जी। और बृषभान ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਦੇ चीफ मिनिस्टर ਸੀਗੇ। और ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਜਰ ਹੋਇਆ 1/11/1956 ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਇਹਦੇ चीफ मिनिस्टर बने रहे। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ बोथ द स्टेट्स। इस क्वेश्चन का जवाब किहड़ा होया जी, डी ऑप्शन होया। क्वेश्चनों ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन थोड़े ਔਖੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ क्वेश्चन ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ दैट मीनस कि थोड़ी जी नॉलेज हैगी वो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए है, अध बचत की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। आम तौर पर फिर आप भीम सेन सच्चर ते बृषभान दे विच भुलेखा खा जाते हैं। भीम सेन सच्चर पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे ने, पैप्सू के कदे नहीं रहे। पैप्सू के चीफ मिनिस्टर कौन कौन रहे ने ये भी सानू पता हो। करनल रघबीर सिंह वो रहे ने, ठीक है जी। तो गुरमुख सिंह मुसाफर गुरमुख सिंह मुसाफर वो भी रहे ने, इत्थे इहदे चीफ मिनिस्टर रहे ने। सो इस तरीके नाल जिहड़ा सीगा यह चीज़ सानू पता होनी चाहिए है। At which place the renowned rural Olympic games are held? In which district does it fall? ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ वाला क्वेश्चन आ गया ਇੱਥੇ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਹੈ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੇਲਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, बेला मोगा दे विच भी नहीं है, किला रायपुर मोगा दे विच नहीं है, किला रायपुर लुधियाने च पैंदा है। सो इस करके जवाब किहड़ा होएगा इहदा, डी ऑप्शन होएगा। और रूरल ओलंपिक दे विच गड्डियां दी रेसां भी होंदियां ने, ठीक है जी। इस तरीके दी रेसां और घोड़ियां दे उत्ते भी रेसां होंदियां ने। इहनूं रूरल ओलंपिक्स कहा जाता है। किला रायपुर दे विच जगराओं दे नेड़े पैंदा है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन the approval of the government is required after the bill is passed by the विधान सभा, ठीक है जी। सो इसका जवाब है जी आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ गवर्नर की अप्रूवल रिक्वायर्ड होंगे ਜਦੋਂ कोई बिल पास होता। जिवें सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है, पहला लोक सभा या राज्य सभा पास करती है, दोनों सैशन जो पास कर देंगे फिर किहदे कोल जांदा है, प्रेजिडेंट कोल जांदा है। सिमिलरली जो विधान सभा बिल कोई पास होंदा है, क्योंकि पंजाब दे विच इक्को हाउस है दैट इज़ विधान सभा है, तो बिल पास होने वास्ते किहदे कोल जाएगा, गवर्नर कोल जाएगा वो। सो अंडर आर्टिकल 200 ये बिल गवर्नर को भेजा जाता है उहदे साइन वास्ते। फ्रॉम विच एयरपोर्ट हैव द सर्विसेज बीन स्टार्टेड इन सैप्टेंबर 2023? हुणे सैप्टेंबर 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ एयरपोर्ट तो सर्विसेज शुरू कीतियां गईयां ने? ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ एयरपोर्ट तो सर्विसेज शुरू कीतियां गईयां ने, क्योंकि ये तो पहले ही चलते हैं, ठीक है जी। बठिंडा भी शुरू करना है हले, पर लुधियाने तो हुणे सर्विसेज शुरू कीतियां गईयां ने। सतलुज रिवर एंटर्स इंडिया इन हिमाचल प्रदेश एंड देयर आफ्टर इन पंजाब एट विच प्लेस? ना देखो वंस अगेन ये दो क्वेश्चन थानू सीधे पूछ लेते। हिमाचल प्रदेश एंटर कर दी है तो कितों कर दी है, जो पंजाब एंटर कर दी है तो कितों कर दी है। सो आप देखिए इत्थे कि यह जिहड़ी एंटर करती है इंडिया दे विच ये शिपकीला तो करती है, और पंजाब दे जिहड़ी एंटर करती है नंगल दे विच एंटर करती है, जिहड़ा कि डिस्ट्रिक्ट रोपड़ दे विच पैंदा, रूपनगर च पैंदा है। सो दैट मीनस डी ऑप्शन इहदा जवाब होएगा। इस तरीके नाल तुसीं देखो दिस इज़ द यह शिपकीला पास की फोटो है,
ਉੱਥੋਂ ਸਤਲੁਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀੜੀਜ਼ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੀੜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਰਖਾ ਵਗੈਰਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਸੀ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੀੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਂਕ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਆਰਡਰ ਆਫ देयर ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਬਾਰਡਰ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ? ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਰਦਰਨ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਕਸ਼ਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਰਦਰਨ ਹਿੱਸਾ। ਆਹ ਸਟੇਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਰਦਰਨ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਰਦਰਨ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਹੂ ਵਾਸ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ who captured ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ and presented him to emperor dash? once again ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ। ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਾਰੂਕ ਸਿਆਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1715 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Of the total princely states of Punjab, which princely state did not join India? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀ? ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਈ, ਔਰ 43 ਸਟੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। Which city has a great strategic significance, being India's only land linked to Kashmir? So ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਪਠਾਨਕੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। 15 ਅਗਸਤ 47 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਊਂਟ ਬੇਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਥਰ ਆਫ ਬੁੱਕ ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਕਰੈਕਟ ਪੇਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਪੇਅਰ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ।
In which year did Muhammad Ghori attack India for the first time, and which area did he attack India for the first time, और ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1175 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 1191 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਰਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ 1191 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 1192 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਔਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ भी ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए 72 जो मॉक टेस्ट है उसके हम क्वेश्चंस को देखेंगे, आंसर्स को देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई इज अपॉइंटेड संदीप बख्शी रीअपॉइंटमेंट एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक फॉर 3 years। 4 अक्टूबर से उनकी अपॉइंटमेंट होगी, तो वो आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। सेकंड हाईएस्ट पेड सीईओ है भारत में। अतुल कुमार गोयल हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक, तो वो पंजाब नेशनल बैंक में चुने गए हैं। विच स्टेट स्टूड फर्स्ट इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन रीअर्बन मिशन फॉर द प्रोवाइडिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, तो ये तेलंगाना के अंदर है। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास, ये किसी पेपर में पूछा जा सकता है। विच कंट्री हैज नाउ बीन एडमिटेड एज अ 4th मेंबर आउटसाइड ब्रिक्स ग्रुप इन द न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसमें इजिप्ट की एंट्री आपको देखने को मिलेगी। Indian Army has set up a quantum computing laboratory and a center for artificial intelligence at the Military College of Telecommunication Engineering, तो ये माओ जो मध्य प्रदेश में काफी इंपॉर्टेंट कैंटोनमेंट है, वहां पे इसको सेटअप किया गया है। इन द यूएस ओपन 2023 नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से खेलते हैं, विच ही डिफीटेड विच प्लेयर इन द मेन सिंगल, तो डेनियल मेडवेडेव को इन्होंने फाइनल्स में हराया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड विच क्रिकेटिंग हीरो एज अ नेशनल आइकॉन of a poll panel on 23rd August to encourage greater voter participation in the forthcoming election, so it was none other than Sachin Tendulkar। 9th schedule was added to Indian constitution through which of the following constitution amendment, तो ये पहली amendment से आया था। The power of Supreme Court to decide dispute between the center and the state falls under, तो ये original jurisdiction में fall करता है। The Supreme Court or High Court commanding a person or a body to do the which of his or its duty डू अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स, तो ये आपके पास मैंडमस के अंडर आता है। इसका मतलब ये होता है टू कमांड। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कम फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, तो इट फॉल्स अंडर आर्टिकल 143। विच पीरियड ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस एट नून एंड स्टार्ट्स आफ्टर द क्वेश्चन आवर, तो क्वेश्चन आवर के बाद शुरू होता है आपका 0 hour। व्हाट इज क्वेरम इन द इंडियन पार्लियामेंट, तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड 1/10 मेंबर होते हैं, ठीक है। अगर राज्यसभा हुई तो नंबर होगा 25, लोकसभा हुई तो नंबर होगा 55, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ शाहनामा, तो शाहनामा लिखा था फिरदौसी ने। विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वॉज गिवन 6 year जेल पनिशमेंट इन 1908, तो इट वॉज गिवन टू बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट इज अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रिजीन ऑफ कनिष्क वॉज हेल्ड एट, तो कश्मीर में हुई थी। कुंदलवन इज द एग्जैक्ट प्लेस, ओके। The first society founded by Raja Ram Mohan Roy was आत्मीय सभा। आत्मीय सभा से बना था ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो सभा से ब्रह्मो समाज बनता है। What is इंटरनेशनल डेट लाइन, तो 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है, एंटीपोडल पॉइंट। The 0 degree line of longitude that divides Earth into eastern and western hemisphere is called as prime meridian, ग्रीनविच मेरिडियन, जिसको आप लंदन से पास करवाते हो। Receipts which lead to decrease in assets or increase in liability of the government falls under which of the following heads, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स के अंदर आपको दिखेगा कि कर्जा चढ़ता है। NTPC starts a trial run of India's first ever hydrogen bus on a public road on August 18 in which place, तो उसको लेह में ट्राई किया गया था। The famous classical dance art that is Kathakali is associated with which primary states, तो Kathakali is associated with Kerala।
हु वॉज द अर्लीस्ट नोन चोला किंग हु कॉन्कर्ड श्रीलंका एंड रूल्ड इट, तो इट वॉज एलारा, तकरीबन 50 साल रूल किया गया था श्रीलंका को, इसलिए आपको श्रीलंका में तामिलियंस का प्रभाव दिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो इट वॉज समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त साम्राज्य से बिलोंग करते थे। इन्हें कविराज का भी टाइटल दिया गया था। कंसिडर द फॉलोइंग, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस क्या है। तो पहले नंबर पे त्रिपुरा है, उसके बाद दूसरा बढ़ती हुई क्रम में आप देखेंगे मिजोरम है, तीसरे पे मणिपुर और मेघालय इनमें सबसे बड़ा है। चलिए, दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस सेक्शन। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते ज्ञानम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है, तो मैं आशीष आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मॉक 72 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक 72। मॉक 72 में देखते हैं सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। अब उसने साफ तौर पे कहा है कि स्टोरेज डिवाइस भी हो और रीड ओनली मेमोरी भी होनी चाहिए। तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि रीड ओनली भी हो और स्टोरेज भी हो, तो सबसे पहले ये दोनों तो पर्टिकुलरली हार्ड डिस्क ही हैं, ये दोनों तो स्टोरेज डिवाइसेस ही हैं। रैम जो है प्रोसेसिंग में आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बस स्टोरेज के लिए नहीं। अगर बात करता हूँ तो इसका आंसर बनेगा CD रोम। रोम CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, नाम से पता चल रहा है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सो आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसी का आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द यूजर व्यू of computer varies by interface being used. A computer also need to a resources allocator and control program to control execution of a user program. Which part of the computer perform this function? कौन सा कंप्यूटर का पार्ट जो है वो इस फंक्शन को परफॉर्म करता है? ध्यान दें, सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहा गया था, जहाँ पे भी इंटरफेस आ जाता है ना, इंटरफेस का मतलब अपने आप में होता है मीडियम, दो चीज़ों को जोड़ने का मीडियम। तो दो चीज़ें जब आपस में जुड़ती हैं तो उन दोनों चीज़ों को जोड़ने का जो मीडियम होता है उसे इंटरफेस बोला जाता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, अगर मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ थ्रू इंटरनेट के कर पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, तो किस पे देख पा रहे हो? मोबाइल की स्क्रीन या सिस्टम की स्क्रीन, तो वो एक इंटरफेस है, एक मीडियम है। तो इंटरफेस का जो काम होगा वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कंप्यूटर में आपके पास विंडो ही ना हो तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। सो आंसर इज डी ऑप्शन। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। फिजिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जिसे टच किया जा सकता है। फिजिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जिसे टच किया जा सकता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर पैकेजेस। तो आंसर क्या बनेगा? हार्डवेयर। हार्डवेयर को आप लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, तो आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इफ़ यू वांट अ लोगो टू अपीयर ऑन एवरी स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन यू शुड इंक्लूड इट ऑन द। आप लोग इसे कहाँ पे लगाएंगे ताकि एक जगह पे लगा के बाकी सभी जगह पे आपके पास आ जाए? स्लाइड टेम्पलेट, स्लाइड मास्टर, स्लाइड डॉक्यूमेंट या फिर स्लाइड फाइल। अगर मैं बात करता हूँ तो स्लाइड मास्टर पे हम लोग लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? स्लाइड मास्टर पे आप लोग लगाएंगे तो सभी जगह ये अपीयर आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? यूज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर मैं बात करता हूँ तो सारा का सारा काम विंडोज़ के थ्रू किया जाता है, विंडो के थ्रू किया जाता है हैंडलिंग का काम। तो जो विंडो है वो किसके अंदर आती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। तो आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे ये आती है। आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को यहाँ पे बात आपके पास अच्छे से क्लियर होगी कि आंसर क्या बनेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। डन है जी। चलिए डन, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग आगे, द इम्पैक्ट प्रिंटर आर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट या फिर ड्रम प्रिंटर। तो इम्पैक्ट का मतलब होता है ऐसे कंप्यूटर जिनमें आपस में फिजिकल स्ट्राइकिंग हो। फिजिकल स्ट्राइकिंग सभी में होती है। तो आंसर इज डी ऑप्शन। आंसर इज डी ऑप्शन। सारे के सारे यहाँ पे क्या हैं? ये काम कर रहते हैं। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास? डी ऑप्शन। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे एक ही टाइप के प्रिंटर आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में है, टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अ डिवाइस इन द सेम रूम यू माइट बी लाइकली यूज टू कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, वायरलेस या नन ऑफ अबव। अब आपको पता कि ऑप्टिकल फाइबर तो घर के अंदर यूज़ नहीं करी जाएगी, ये तो नहीं होगा।
अब आप लोगों को हमेशा ही डाउट रहता है सर कोएक्सियल केबल ही आए या वायरलेस, आपके पास वायरलेस आए। तो बच्चे बोलेंगे सर वायरलेस का यूज़ करते तो हैं, तो इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पे क्वेश्चन की प्रेफरेंस के बेसिस के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो वो डिमांड कर रहा है कि आप केबल के आंसर करें, तो आंसर आपके पास दिया जाएगा आपके पास कोएक्सियल केबल। नो डाउट ये गलत नहीं होगा, ठीक है। बट कई बार इतने नज़दीक आंसर दे देता है तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सो आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है। द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज द लार्जर पेज, द लास्ट पेज, द फर्स्ट पेज या द मोस्ट कलरफुल पेज। होम पेज का मतलब अपने आप में ही क्या होता है, फर्स्ट पेज, या फिर से लैंडिंग पेज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लैंडिंग पेज के नाम से भी जाना जाता है। सो आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। कैलकुलेट करने के लिए और कंपेयर करने के लिए कौन सा पार्ट जो है कंप्यूटर का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो डिस्क यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, ALU है, मॉडम। तो मॉडम तो होगा नहीं, डिस्क यूनिट भी नहीं होगा, इतनी बात तो पता है। या कंट्रोल यूनिट या ALU में से बनेगा। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है वो ये काम करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक लाया जाता है, तो मैं आशीष आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक 72, जिसमें रीजनिंग आप लोग मेरे साथ यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द लेटर्स सीरीज फॉलोज द गिवन रूल। Number of letters kept between adjacent letter of the series goes on increasing successively by 1। आपके पास नंबर जो है लेटर आपके पास बढ़ते जाएंगे सक्सेसिवली 1। तो इन क्वेश्चन को जनरली लास्ट से आपको पकड़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि आंसर डी ऑप्शन होता है। चलिए तो हम भी डी पहले पकड़ते हैं। क्या है, एफ, आपके पास एच, के, ओ, टी एंड जेड। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, आपके पास क्या है, 6, 8, आपके पास 11, 15, 20 और 26, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को कि गैप कितने का है। तो यहाँ पे 6 और 8 के बीच में 1 का गैप है, ठीक है। आगे अगर देखता हूँ 8 और 11 के बीच में 2 का गैप है। आगे अगर बात करता हूँ यहाँ पे 3 का गैप है। आगे अगर मैं बात करता हूँ 4 का गैप है। आगे अगर बात करता हूँ 5 का गैप है। सो आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला कोडिंग डिकोडिंग से है, तो चेक करते हैं। E, F, G, H, I, J और K। अगर यहाँ पे निकालते हैं V, U, T, S, R, Q, P, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 5 और आपके पास 22, 27, 7 और 20, 27, आपके पास 8 और 19, 27, आपके पास 11 और 16, 27, 9 और 18, 27। मतलब आपने यहाँ पे ये देखा कि लेटर का अपोजिट सम कितने के बराबर है, 27 के बराबर है। तो S का कोड होता है 19, 19 के अपोजिट आता है 8। तो आपके पास ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आंसर बनेगा। क्या आंसर बनेगा, बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, क्या लिखा है, इन ईच नंबर 1 इज एडेड इन द मिडल। 1 इज एडेड इन द मिडल मतलब यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। फिर 5, 4, 6, 8, 8, 1, 9, 5 एंड 2, 7। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, आगे बोला क्या गया, 1 इज एडेड इन द ईच ऑफ द मिडल डिजिट एंड देन द फर्स्ट 2 डिजिट आर इंटरचेंज। पहले 2 को इंटरचेंज कर दो, तो पहले का बनेगा 8, 5, 4, 6, 6, 8, 3, 8, 1, 5, 9, 5, ठीक है, और 5, 2, 7। अब पूछा क्या गया है, विच नंबर विल बी दी लार्जेस्ट। अब इन सब में लार्जेस्ट नंबर जो है वो कौन सा है, ये है 854। 854 मतलब आपके पास 574, जो कि ऑप्शन में नहीं था। तो आंसर इज नन ऑफ दिस, आंसर इज नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब यहाँ से पैटर्न समझते हैं। 3 से 5 पे गए, क्या ऐड हुआ, 2।
आगे 5 से 7 पे गए, कितना ऐड हुआ 2। आगे यहाँ पे देखते हैं कितना ऐड हुआ 4। अब यहाँ पे देखते हैं फिर से क्या आगे आएगा 2, तो कितना आ जाएगा 13। आगे फिर से देखते हैं, फिर से क्या आएगा 4, फिर से क्या आएगा 2, ठीक है, फिर से क्या आएगा आपके पास 4। तो ये पैटर्न आपके पास यहाँ पे चल रहा है। इस पैटर्न को फॉलो आप लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। होपफुली बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो आंसर इज आपके पास 13, आंसर इज 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, EGIKWUSQ, ठीक है, और निकालना किसका है, DFHJ। देखो बेटा 5, 23, अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी रहे। 7 और 21, 9 और 18, और आपके पास 11 और 17। अगर मैं बात करता हूँ 19 आएगा, नोट 18, यहाँ पे 19। तो 23, 5, 28, 21, 7, 28, 20, 8, 28, और यहाँ पे भी 28। मतलब हर एक लेटर का सम जो है वो कितने के बराबर बन रहा है, 28 के बराबर बन रहा है। 4, 6, 8 और 10। 4 में कितने ऐड करे जाएं कि 28 बन जाए, 4 में कितने ऐड करे जाएं, तो आपके पास 24 ऐड करे जाएं। 24 का मतलब होता है x। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, डी ऑप्शन आंसर। कुछ मत करो, सीधा आंसर कर दो, सीधा आंसर कर दो, क्योंकि बाकी है ही कोई नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो ये है, 3 of the following 4 are alike in a certain way and so from the group which is one that does not belong to the group, nephrology and entomology and astrology and mycology। अगर बात करता हूँ एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा सा मेरे को ऑड लग रहा है, क्यों, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो अलग चीज़ होती है, बाकी सारे के सारे जो हैं बायोलॉजी से रिलेट हैं। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है आपके पास। रमन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस, ठीक है, टूवर्ड नॉर्थ। एक पर्टिकुलर पॉइंट से नॉर्थ की तरफ कितना जाता है, 5 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, लेफ्ट लिया और 3 चला। अगेन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, राइट लिया और 2 चला। फाइनली टर्न टू राइट एंड 3, फाइनली टर्न टू राइट एंड 3 टू रीच अ पॉइंट बी। अब ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है आपके पास, बट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और बी के बीच की दूरी 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 7, ए ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड होगा, देखो दोनों जगह सेम है तो चलने दो फिर। अब सबसे पहले आपके पास ये रिलेशनशिप गिवन है, तो जनरली यहाँ पे डिवाइड ही होता है, डिवाइड डिवाइड, सेम बात है। अगर बात करता हूँ, सबसे पहले आपके पास रिलेशनशिप बताना है, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो पहले बना लेते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ ए प्लस प्लस का मीनिंग क्या है, फादर। ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी। मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है आपके पास, ब्रदर। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। अब डिवाइड का मीनिंग क्या है, सिस्टर। सी इज द सिस्टर ऑफ डी। एस्ट्रीक का मीनिंग है कि P इज द सन ऑफ, P अगर सन है तो पॉजिटिव आएगा, P इज द सन ऑफ E, ठीक है। और हैश टैग है आपके पास, P इज द डॉटर ऑफ F, E इज द डॉटर ऑफ F। अब अगर मैं बात करता हूं, पूछा क्या है, हाउ A इज रिलेटेड टू F। A जो है वो F का क्या लगता है, तो A जो है इसका दामाद लगता है, तो आंसर क्या जाएगा, सन इन लॉ। आंसर क्या जाएगा, सन इन लॉ। आंसर जाएगा सन इन लॉ। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ललित वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। यहाँ पे था ईस्ट की तरफ गया 6 किलोमीटर, ठीक है। टर्न नॉर्थ, ठीक है, एंड वॉक अनदर 8 किलोमीटर, ठीक है। देन आगे है, ही अगेन टेक्स टर्न टूवर्ड साउथ वेस्ट एंड वॉक अनदर 16।
अगर यहाँ से साउथ वेस्ट की तरफ 16 जाता है तो मतलब यहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि 10 यहाँ तक होगा और 6 यहाँ तक होगा, क्योंकि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो 8 का कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए पी की वैल्यू कितनी है 64 और यहाँ पे 36, तो दोनों का 100 आ जाएगा। 100 को जब भी खोलेंगे तो 10 आएगा, तो आपके पास 10 यहाँ पे आ गया और ये 16 चला था तो 6 और आगे जाएगा। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट इज ही स्टैंडिंग नाउ। यहाँ से खड़े होके अगर जब भी तुम लोग देखोगे तो साउथ है और वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट की तरफ तुम लोग खड़े हो। कौन सी तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ तुम लोग खड़े हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, इफ टुडे इज सैटरडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 999 डे फ्रॉम टुडे। अगर आज सैटरडे है तो सैटरडे की 999 दिन बाद क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 7 कर लो, 999 है 7। ठीक है, 7 अगर मैं बात करता हूँ तो 1 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से किया तो 7 पे गया, कितना गया 2 और 9। ठीक है, 7 4 जा 28, 28 पे गया तो क्या बचा 1 और 9। 7 2 जार 14। ठीक है, क्या बचा 3। मतलब ओड डे कितने बच गए, 3 बच गए आपके पास। एक्चुअल में ये जो निकल के आए हैं ये हैं वीक। ठीक है, और ये क्या है आपके पास ओड डे, और ये सारा का सारा क्वेश्चन किस पे होता है, ओड डेज के ऊपर होता है। तो अगर बात करता हूँ तो 3 अगर आपके पास ओड डे निकले हैं तो आज सैटरडे था, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। सैटरडे के 3 दिन बाद, सैटरडे के बाद संडे मंडे और ट्यूसडे, 1 2 और 3, तो ट्यूसडे आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला क्या है, आपको बेस्ट रिलेशनशिप यहाँ पे ढूंढना है ऑटोमोबाइल, कार्स एंड मोटरसाइकिल। तो आपको मालूम है कि आंसर बनेगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल आ जाएगा बाहर का, एक कार का आ जाएगा, एक मोटरसाइकिल का आएगा। आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगले क्वेश्चन में आप लोगों को ये प्रूव करना है कि बोथ आर सेम थिंग। तो ए ऑप्शन अगर हम भर के देखते हैं, 12 - 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। तो अगर मैं देखता हूँ तो 2 आ जाएगा, पर मल्टीप्लाई करके ये होगा नहीं, तो इस ऑप्शन को तो कैंसिल कर लेते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, 1 एक तो कैंसिल, बी भरते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो पहले डिवाइड किया, कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 2 इंटू में 12 इंटू में 1 इज इक्वल टू 24। 12 इंटू में 2 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24, तो 24 इज इक्वल टू 24। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञान एम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। मॉक नंबर है 72। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या बोला गया है, इन ए बॉक्स देयर वर डजन केक्स ऑफ soap in each horizontal and vertical row. If there were 20 such layers in the box, find the total number of cakes in the box. देखो जितनी लेयर होंगी, ठीक है, कितनी लेयर हैं 12। अगर वो हॉरिजेंटल और उसमें रखेगा, वर्टिकल सभी उसमें रखेगा, तो ये कितना बनेगा, 12 का क्यूब बनता है। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होगा। और ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर एक्स इज डबल ऑफ डॉटर एज। तो अगर डॉटर की एज 1 है तो मिस्टर एक्स की एज कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, डबल हो जाएगी उससे। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इज 20 ईयर्स, मतलब देखो 1 की वैल्यू कितनी है 20, अगर ये 20 है तो ये से डबल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देन हाउ मेनी ईयर्स एगो हिज एज वाज 3 टाइम्स, देखो माइनस एक्स, मतलब x साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, 3 टाइम्स। तो मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वल करने के लिए। तो 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस 3x। ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 2x किसके इक्वल, 20 के। तो x की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। x की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price, but he used a false weight and gain 618 by 47%. देखो जब इसके आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे 6 इंटू 47 प्लस 18 डिवाइड बाय 47 इंटू 100, देखो जो भी आपका आंसर होगा ना वो 47 का मल्टीपल होना जरूरी है। अगर मैं इन नंबर्स में से ध्यान से देखूं तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 47 का मल्टीपल है, ऑप्शन बी, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ ए 11, 23 एंड 17 इज 50। देखो एवरेज, अगर चार नंबर का एवरेज 50 है, ठीक है, इनको ऐड करो, 23 प्लस 17 40, 14 प्लस 11 51, और 15 इंटू 4 मतलब टोटल कितना होगा, 60 होगा। तो दैट मीन्स यहां से एक चीज तो नजर आ गई कि ए की वैल्यू क्या है, 9 है। ए की वैल्यू क्या है, 9। अब ये फिर से चार नंबर है तो ये टोटल सम कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 12, जैसे ए की वैल्यू क्या है, 9, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 25 46, ठीक है। अब 64 और 46 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 18। तो उसने आपसे पूछा था 9/18 मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 टीवी सेट, 2 टीवी एंड 1 रेडियो इज इक्वल टू 7000। फिर क्या कह रहा है, वाहिल द 2 रेडियो एंड 1 टीवी एंड 2 रेडियो इज इक्वल टू 4250। ठीक है, उसने टीवी सेट की कॉस्ट पूछी, तो रेडियो को हमें क्या करना है, यहां से कैंसिल करना है। ठीक है, ऊपर वाले को देखो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 14000 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 3 टीवी, 14 में से 4 गया, 10 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 9750। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, पहले 3 पे डिवाइड करेगा, फिर 250 पे, तो 3250। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन सोल्ड 20 आर्टिकल्स फॉर 60 रुपीज एंड गेन 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो 5 से कितना होगा, 6। अगर प्राइस का रेशो 5:6 है तो क्वांटिटी का रेशो क्या होता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब उसने 20% का प्रॉफिट लिया है तो उसने 20 आर्टिकल सेल किए हैं, तो 5 की कीमत कितनी है, 20, 1 की 4 होगी, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6 गुना 4 24। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। 7 मैन कितने में करते हैं, 12 डेज में करते हैं। हाउ मेनी एडिशनल मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डबल ऑफ द वर्क इन 8 डेज। 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 से डिवाइड करेंगे 3, तो 21 कि अब टोटल 21% चाहिए। 7 उसके पास थे तो एडिशनल उसने पूछा था, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर टेक 25 सेकेंड्स टू पास ए ब्रिज, द लेंथ ऑफ द ब्रिज। देखो किसको क्रॉस किया, ब्रिज को क्रॉस किया है, और जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। 36 इंटू 5/18 इंटू 25, 18 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 माइनस 100 150। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%। देखो बाय व्हाट परसेंट वुड बी द ब्रेथ डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। लेंथ इंटू विड्थ, यही रेक्टेंगल का एरिया होता है। अगर इसको भी 10 मान लो, इसको भी 10 मान लो, तो एरिया कितना था, 100 था। अब उसने बोला कि ये कितना हो गया है, 60% इंक्रीज होकर 16 हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि एरिया 100 ही रहे, दैट मीन्स मुझे इसको 100/16 बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 16 से 16 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब यहां से समझ आ रहा है कि पहले विड्थ 10 थी, तो अब 100/16। अब मैं फ्रैक्शन को खत्म करना चाहता हूं, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो कि 160 से 100 हो गया है। कितना कम हुआ है, 60 कम हुआ है। किसके ऊपर, 160 के ऊपर। 20 से डिवाइड करेंगे तो 3/8, और 3/8 मतलब 37 1/2%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड। देखो किसी भी रूम में जो लॉन्गेस्ट रोड रखी जाती है वो उसका क्या होता है, डायगोनल होता है। ठीक है, उसने क्या बोला, क्यूबिक।
और क्यूब का डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट 3 इंटू ए। तो रूट 3 10 या 10 रूट 3 आप जैसे मर्जी इसको लिख लो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द इंटीजर्स 6 माइनस एक्स और 7 माइनस एक्स लेस देन 16/21। ठीक है, देखो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 126 माइनस 21x इज इक्वल टू 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 112 माइनस 16x। इनको अलग अलग कर लेते हैं, x को उधर ले जाते हैं तो ये 5x हो जाएगा आपका। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 14, ये लेस देन का साइन था, सॉरी। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 14/5। तो अप्रोक्सीमेट इंटीजर कितना होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटरनेशनल। सबसे पहले तो इसमें काउंट कर लो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, ठीक है। उसके बाद आई रिपीट हो रहा है 1 और 2 टाइम्स, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल होगा। उसके बाद एन 3 टाइम्स हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल भी होगा। ठीक है, इसमें भी है 2 और 3, इसमें भी है। उसके बाद टी भी इसमें रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इसमें एक 2 है, इसमें भी एक 2 है। उसके बाद और भी कुछ रिपीट हो रहा है, ए भी आपका रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि उसके अलावा और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 10%। देखो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो और टाइम आपका 3 year हो, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका सिर्फ 30% होगा, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 33.1% होगा। तो डिफरेंस कितने का है, 3.1% का, जो कि 31 है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे, तो 10, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 1000। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकेंड, ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन सभी क्लियर होंगे, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. Let's see what we have in store as per this mock. सबसे पहले आते हैं synonyms. Temperance in eating is conductive to health. Temperance मतलब moderation. Followed by, फिर से, he was exonerated. A man of unsound mind, he was exonerated from all responsibility. So it should be exculpated. Followed by, 4 choices हैं, check करते हैं. One word substitution. Science of dealing with stamp collection is called philately. Followed by, a person 70 to 79 years is called septuagenarian. Followed by, errors. Secretary of Workers Union remarked past में है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, past, यानी कि is का was. I have read many plays of Shaw, not Shaws. It should be Shaw. Answer B. Followed by, we had swum across the river, क्योंकि had के साथ verb का थर्ड फॉर्म आता है, तो इट शुड बी वी हैड swum across the river. Followed by, अभी अगला देखना जरा, ये वाला को सेंटेंस इंप्रूवमेंट को देखते ही, बॉन्डेड लेबर हैज बीन नाउ, नाउ लगा है, इज नाउ ऑलमोस्ट अ थिंग ऑफ द पास्ट. इट इज sheer foolishness to think that the education system can be improved by doing away with भी लगेगा साथ में. नेक्स्ट, आपके पास PQRS अरेंजमेंट आया, यहां से ट्राई करते हैं. यू हैव हैड अबाउट इट बाय नाउ. प्लूटो इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ प्लैनेट. प्लूटो के लिए लगाएंगे इट. इट का मतलब आपके पास क्यू के बाद एस आएगा या पी आएगा. पी लगाता हूं तो प्लूटो इज द ओनली नोन है. एस लगाता हूं इवन इन द पास्ट, तो पहले पास्ट आएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. अगला, दोज हु आर, आर के बाद आर तो आएगा नहीं, दोज हु आर सेइंग होना चाहिए, एंड तो आएगा नहीं, इन फेवर ऑफ यानी एस से स्टार्ट हो जाएगा. इंडिया कैरिड द डे बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया. इडियम्स, कैरिड द डे का मतलब हो जाना, जीत जाना, विन हो जाएगा. देयर वी गो विद इट. थैंक यू.